Hello friends, welcome back to my channel Tutor Theory. Today topic is female reproductive system और ये two parts में बना है. So in first part we will discuss about external genital and the internal genital, anatomical structures of the uterus and their function of the uterus, and then in next part we will discuss about the phases of menstruation and anatomical structure of uterine tube and function of uterine tube and the ovaries. So let's start our topic with the first external and internal genitals. So before starting the topic, we will discuss about what is the reproductive system, right? So it is written here, the reproductive system of an organism, also known as the genital system, right? So reproductive system, also called as genital system. It is the biological system made up of all anatomical organs involved in sexual reproduction. Whatever the organs which is involved in sexual reproduction called as reproductive system. Right? Next, it is female reproductive system. In human female reproductive system, it is a series of organs. So female reproductive system में क्या है? It is a series of organ primarily located inside the body and around the pelvic region. So female reproductive system is located inside the body around the pelvic region of the female that contribute towards the reproductive process. Means your फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सीरीज ऑफ ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के इनसाइड पे प्रेजेंट होते हैं और इट इज अराउंड द पेल्विक रीजन. हमारे पेल्विक रीजन के में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. So female reproductive system is divided into two, that is external genital and the internal genital. So we will discuss one by one the external genital and internal genital. First one is external genital. It is the genital which we can see from outside. Right? We can see this genital from our eyes. And collectively it is called as vulva, and it has four parts, that is labia majora, labia minora, clitoris and vestibular gland. ठीक है, ये तीन जो है we can see, right? Labia majora, labia minora and clitoris. So labia majora क्या है? It is the outermost layer we can say it is the labia majora. The second one is labia minora, so it is the second layer. It is the second layer, the labia minora, and clitoris. It is situated just above the urethral opening. यहाँ पे क्या है? Vaginal opening है. This is the vaginal opening we can see. Here is the urethral opening where we can pass the urine, and vaginal opening from here where the delivery happens and all the intercourse take place, right? And the last one is the vestibular gland. So this all are present in the external genital. So we can see this by our eyes. First is the labia majora, labia minora, clitoris and vestibular gland. The next one is internal genital. Internal genital which we can't observe from our naked eyes. Okay, we can't observe this. So it has four, that is vagina. In first slide, previous slide we have discussed vagina कहाँ पे present होता है? Just below the urethral opening, right? Just below the urethral opening, it is the vagina is situated, right? So after vagina, here also we can see inside it. Okay, vagina, it is the vagina here. Inside it क्या है? Uterus है. Okay, this is the uterus. Now there is two uterine tubes. This two is called the uterine tubes. Okay, or we can call it the fallopian tube. There is the two ovaries. Okay, here is the two ovaries also is present. So one by one we will see its anatomical structure as well as its function. This anatomical structure.
तो लोकेशन में अगर आएंगे तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, है ना। ये जो हमारा यूट्रस है, राइट, यूट्रस यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, वी कैन सी हियर। और इसी के किसके बीच में है, तो वो है यहाँ पे ब्लैडर हमारा प्रेजेंट है, और पीछे साइड में क्या है, रेक्टम प्रेजेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा यूट्रस प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट इसका अगर पोजीशन पे आएंगे तो द पोजीशन इज एंटी वर्जन, राइट। पोजीशन इज एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। हम यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं, क्या है, एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन है, एंड द राइट एंगल टू द वजाइना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वजाइना है, इसी के राइट एंगल पे क्या हमारा यूट्रस प्रेजेंट है, राइट। फिर इसे इसके साइज में आएंगे, जो यूट्रस है, राइट, उनके साइज पे आते हैं हम। इनके अगर यूट्रस के साइज पे आएंगे तो इट इज 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग में है, राइट। क्या हो रहा है, ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर विथ, मीन्स क्या है, इनका जो विथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एंड अगर इसके थिकनेस में आएंगे तो इट इज 2.5 सेंटीमीटर, ना इनका विथ 2.5 सेंटीमीटर। तो इनकी साइज में आएंगे तो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, विथ में 5 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस में 2.5 सेंटीमीटर। कमिंग टू इट्स वेट, मतलब वेट, यूट्रस का वेट कितना है, दैट इज 30 to 40 ग्राम, राइट। तो ये एनाटॉमी इसका क्लियर हो गया। इसमें क्या है, इट इज कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है, दैट इज एंटी वर्सन एंड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन है, एंड राइट एंगल टू इट्स वजाइना है। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, इसका अगर लोकेशन आएंगे तो बिटवीन द ब्लैडर एज वेल एज बिटवीन द ब्लैडर एंड रेक्टम। और इसके साइज में आएंगे तो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर विथ है, एंड इट्स थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर। कमिंग टू इट्स वेट तो वो है 30 to 40 ग्राम। सो मैंने जो एक्सप्लेन किया सेम वही चीज है यहाँ पे। द यूट्रस ऑल्सो नोन एज द वूम, इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, है ना। क्या है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। प्रीवियस स्लाइड में हमने जैसे बताया, डिस्कस किया, इसका लोकेशन कहाँ पे है, बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। इट इज पियर शेप्ड, ना, इट इज पियर शेप्ड ऑर्गन, प्लेस अ रोल इन मेंस्ट्रुएशन। कौन, which part of the reproductive system help in menstruation, pregnancy and childbirth, that is your uterus. It is usually present in people assigned female at birth, right? तो female में mostly ये present है uterus, which helps in menstruation, pregnancy and childbirth. Coming to the next slide, here is ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुका है। लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। पोजीशन में आएंगे तो इट इज एंटी वर्सन एंड एंटी फ्लेक्शन एट द राइट एंगल टू द वजाइना। And coming to its size, it is 7.5 centimeter long, 5 centimeter width, and 2.5 centimeter thickness है इसका। Coming to weight, it is 30 to 40 gram. So the next one is part of the uterus. In part of the uterus, we are saying it has three parts. That is the fundus. ये green part जो है, that is the fundus. Second one is the body. यहीं पे क्या हो रहा है, implantation हो रहे हैं, plus इनके menstruation में help कर रहा है, ये shed off हो रहे हैं ये layers. And the last one is the cervix. तो parts में क्या है, तीन parts हैं, that is the fundus, body and the cervix. Coming to the structure of uterus, right?
तो स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस में इट इज डिवाइडेड इनटू 3, दैट इज पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम जो है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। Okay, it is the outer layer, and coming to the myometrium, it is the middle layer. And the last one is the endometrium, it is the innermost layer. And this endometrium is further divided into two, that is the functional layer and the basal layer. No, functional layer और क्या है basal layer, टू लेयर में डिवाइडेड है ये एंडोमेट्रियम, दैट इज द फंक्शनल लेयर एंड basal layer. तो फंक्शनल लेयर और basal layer में क्या होगा, तो इसमें हम क्या देखें, टू लेयर था, दैट इज अ फंक्शनल लेयर एंड द basal लेयर. तो फंक्शनल लेयर क्या कर रहा है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, during the menstruation this layer shed off, right? in कौन सा लेयर है, दैट इज फंक्शनल लेयर. मीन्स एंडोमेट्रियम में ही क्या है, कौन सा लेयर शेड ऑफ हो रहा है, दैट इज द फंक्शनल लेयर शेड ऑफ हो जा रहा है. और बेसल लेयर का काम क्या है, दैट इज बेसल लेयर क्या कर रहा है, स्टेम सेल है, राइट? क्या है वो, स्टेम सेल है. और ये क्या करता है, व्हेन इट प्रोड्यूस अ फंक्शनल लेयर, मतलब जब फंक्शनल लेयर शेड ऑफ हो जाएंगे तो कौन सेल बना के उसको दे रहा है, लेयर बना के दे रहा है, दैट इज योर ये बेसल लेयर. ठीक, तो शेडिंग कौन हो रहा है एंडोमेट्रियम में, फंक्शनल लेयर जो है वो शेड ऑफ हो जा रहा है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन. बट बेसल लेयर क्या कर रहा है, ये ऑल्सो इट इज कॉल्ड ऑल्सो द स्टेम सेल, और ये क्या कर रहा है, फंक्शनल लेयर प्रिपेयर कर रहा है. क्योंकि जैसे मेंस्ट्रुएशन में फंक्शनल लेयर शेड ऑफ हो जाएगा तो ये फ्रेश लेयर, फंक्शनल लेयर बना करके रेडी कर, राइट? So far we have understood perimetrium क्या है, outer most layer है, और myometrium innermost sorry middle layer है, और endometrium that is the innermost layer, it is further divided into two, that is the functional layer and basal layer. तो फंक्शनल लेयर का काम क्या है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम ही शेड ऑफ हो जाते हैं, और बेसल लेयर ये क्या करता है, न्यू लेयर मीन्स न्यू फंक्शनल लेयर रेडी करता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस. तो सबसे फर्स्ट क्या है, सराउंडिंग ऑर्गन. तो सराउंडिंग ऑर्गन में क्या क्या आएगा, हमने एनाटॉमी में ही देख लिया क्या क्या उसके सराउंडिंग ऑर्गन्स में थे, दैट इज द ब्लैडर, राइट? ब्लैडर प्रेजेंट है और रेक्टम. राइट, तो ये दो ऑर्गन क्या है, सपोर्टिंग ऑर्गन्स है जो कि यूट्रस को सपोर्ट कर रहे हैं. कमिंग टू द मसल्स, तो मसल्स में पेल्विक फ्लोर के जितने भी मसल्स हो गए, राइट? तो वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, दैट इज योर यूट्रस को, है ना. सपोर्टिंग ऑर्गन्स में कौन कौन है, ब्लैडर और रेक्टम, और मसल्स में पेल्विक मसल्स जितने हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट है लिगामेंट्स. तो लिगामेंट्स में हम देख रहे हैं ब्रॉड लिगामेंट्स है, राउंड लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट जिसको कि हम लोग कह रहे हैं कार्डिनल लिगामेंट, एंड द लास्ट इज प्यूबो सर्वाइकल फेसियम. तो दिस ऑल आर द लिगामेंट्स जो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द यूट्रस. तो ये जो लिगामेंट है किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वी विल सी वन बाय वन. तो इसमें लिगामेंट्स क्या क्या है, राउंड लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राइट?
तो इसमें हम देख रहे हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो है, दिस यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कार्डिनल लिगामेंट है और राउंड लिगामेंट। तो ये किस चीज में मेन फंक्शन है, दैट इज स्टेबलाइजिंग द पोजीशन। ये जो यूट्रस है उसको स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस क्या हो रहा है, यूट्रस का जो रेंज ऑफ मोशन है, राइट, ROM, किसका, यूट्रस का रेंज ऑफ मोशन को स्टेबलाइज करने का काम किसका है, राउंड लिगामेंट, योर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है और कार्डिनल लिगामेंट। ये तीनों का काम है पोजीशन को स्टेबलाइज करना, प्लस रेंज ऑफ मूवमेंट जो है यूट्रस का उसको स्टेबलाइज करके रखना। नेक्स्ट हमारे पास हमारा फिर लिगामेंट्स जो है, ये तीनों लिगामेंट्स के बारे में देखते हैं कैसे वो हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट इज द राउंड लिगामेंट, राइट। राउंड लिगामेंट क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट पोस्टीरियर मूवमेंट ऑफ द यूट्रस। ये जो यूट्रस है उसको उसका जो पोस्टीरियर मूवमेंट है, राइट, जो पोस्टीरियर मूवमेंट हो रहा है उसको रोकने का काम कर रहा है, मींस मूव करने ज्यादा नहीं दे रहा है, राइट। सेकेंड वन वी विल सी क्या है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राइट। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, ये क्या कर रहा है, keeps the body from moving inferiorly and anteriorly। जो बॉडी है, राइट, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी, हमने यूट्रस के 3 पार्ट पढ़े थे, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो जो बॉडी का मूवमेंट है, यूट्रस के बॉडी का मूवमेंट है, उसको क्या कर रहा है, inferiorly एंड anteriorly, एंटीरियरली और इंफीरियरली उसको मूव करने में हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अब हमारा थर्ड लिगामेंट है, दैट इज कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट, तो इसका काम क्या है, ऑल्सो प्रिवेंट द इंफीरियर मूवमेंट ऑफ द यूट्रस। जो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है वो इंफीरियरली और इसका पोस्ट एंटीरियरली मूवमेंट करने में हेल्प कर रहा था, बट ये कार्डिनल लिगामेंट क्या कर रहा है, इंफीरियरली जो मूवमेंट है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मीन ज्यादा मूव करने नहीं दे रहा है, राइट। तो तीनों लिगामेंट समझ में आ गए, राउंड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट किस तरह से यूट्रस को स्टेबलाइज करके रख रहा है उसका पोजीशन में एंड रेंज ऑफ मोशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट लिगामेंट जो है, दैट इज ब्रॉड लिगामेंट, है ना। तो ये ब्रॉड लिगामेंट क्या है, ये पूरा कवर करके रख रहा है किसको, ओवरीज को, राइट। यहाँ पे क्या है, ओवरीज को कवर कर रहा है, जो यूट्रस है उसको कवर करके रख रहा है, एंड देन ओविडक्ट, ये पूरे पार्ट को क्या कर रहा है, ये कवर करके रख रहा है। कौन, दैट इज द ब्रॉड लिगामेंट। और इसको क्या फिक्स करके रख रहा है, पेल्विक कैविटी में। तो समझ में आ गए लिगामेंट्स के क्या क्या काम है, राउंड लिगामेंट्स, broad ligaments, cardinal ligaments, and uterosacral ligaments. Right, we will see. The uterus contains three suspensory ligament that help stabilize the position. तो क्या कर रहा है, पोजीशन को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर रहा है और उसके रेंज ऑफ मूवमेंट, ये दोनों को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। कौन कर रहा है, दैट इज द लिगामेंट। दिस थ्री लिगामेंट्स जो है वो पोजीशन को स्टेबलाइज कर रहे हैं एज वेल एज लिमिट्स इट्स मूवमेंट, जो यूट्रस का मूवमेंट है उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो कौन थ्री है, दैट इज योर थ्री, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट एंड कार्डिनल लिगामेंट। तो वन बाय वन वी विल सी कैसे वो हेल्प कर रहे थे। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ligaments the body from moving inferiorly and anteriorly, right. Round ligament है, restrict position movement of the uterus, and the third one is cardinal ligament, also prevent the inferior movement of the uterus. तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्रॉड लिगामेंट का काम क्या है, कवर्स द ओवरीज, यूटरस एंड ओविडक्ट, स्टेबलाइजिंग देयर पोजीशन, है ना। ओवरीज
यूट्रस एंड ओविडक्ट का पोजीशन को क्या है वो स्टेबलाइज करके रख रहा है, एंकरिंग देम टू द वॉल एंड फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी, वहां पे उसको फिक्स करके रखने का काम कर रहा है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द राउंड लिगामेंट इज टू सपोर्ट ऑर्गन इन द पेल्विस, जैसे हमने बता दिया पहले, एंड दे स्ट्रेच एंड एलोंगेट टू अकोमोडेट द ग्रोइंग यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, राइट। तो जो सपोर्टिव ऑर्गन जो राउंड लिगामेंट था वो क्या कर रहा है, ऑर्गन को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इन द पेल्विस। और जब प्रेगनेंसी के टाइम में जब यूट्रस ग्रो होता है तो उस टाइम भी वो स्ट्रेच हो जाता है। नेक्स्ट है दिस प्यूबो सर्वाइकल फेसिया, हमने एक देखा था प्यूबो सर्वाइकल फेसिया, तो वो क्या कर रहा है, एक्ट लाइक अ सपोर्टिव हेमॉक ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर को क्या हर्निएट होने नहीं दे रहा है, कौन, प्यूबो सर्वाइकल फेसिया, and prevent the bladder from herniating into the anterior wall of the vagina, right। क्योंकि ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट था, ब्लैडर यहाँ था, यहाँ पे हमारा यूट्रस है, फिर इधर रेक्टम है, तो वो क्या हो रहा है, जो ब्लैडर है उसको वजाइना में हर्निएट होने से प्रिवेंट कर रहा है, कौन प्रिवेंट कर रहा है, प्यूबो सर्वाइकल फेसिया। सॉरी, जो प्यूबो सर्वाइकल फेसिया है वो क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ब्लैडर को हर्निएट होने से, किसमें हर्निएट होने से, वो है वजाइना में हर्निएट होने से प्रिवेंट कर रहा है। सो अब तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा क्या हो रहा था, किस तरह से यूट्रस को उसके पोजीशन में स्टेबलाइज कर रहे हैं, जो लिगामेंट्स है, मसल्स हैं, सारे मिल करके, है ना। सो फर्दर वी विल डिस्कस, next we will discuss about function of the uterus। The first function is menstruation, जो एंडोमेट्रियम हमने देखा था। तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो शेड ऑफ हो जा रहा है, मीन्स एंडोमेट्रियम का जो फंक्शनल लेयर है दैट इज बीइंग शेडिंग ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, और वो क्या कर रहा है, एक न्यू लेयर प्रिपेयर कर रहा है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, और वी कैन से फॉर द मेंस्ट्रुएशन, राइट। तो सेकंड है फंक्शन ऑफ यूट्रस है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना। तो क्या होगा, अगर फीमेल जो है इंटरकोर्स करी और जो फीमेल एम्ब्रियो ओवम है और स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट कहाँ होगा, दैट इज इन एंडोमेट्रियम लेयर पे होगा, और वही एंडोमेट्रियम लेयर जब इम्प्लांट होता है तो वो डेसिडुअल लेयर उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जेस्टिएशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, जेस्टिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे हेल्प कर रहा है, और फिर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो लेटर इन फीटस, जो एम्ब्रियो है वो क्या हो रहा है, लेटर फीटस के रूप में ले रहा है ना, जिस जो कि कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज द यूट्रस। द लास्ट वन इज लेबर, तो जितना भी यूट्रस के लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जितने भी लेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब बेबी क्या होगा, स्पिल आउट होगा, मीन्स बेबी जो है वजाइना के थ्रू वो बाहर आ जाए, राइट। तो हमने फंक्शन देख लिया क्या क्या है, मेंस्ट्रुएशन में हेल्प कर रहा है यूट्रस, सेकंड क्या है,
इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का इम्प्लांट करने में हेल्प कर रहा है। और नेक्स्ट है जेस्टिएशन, प्रेगनेंसी में हेल्प कर रहा है। एम्ब्रियो को डेवलप करने में, जो मीन्स बाद में फीटस को डेवलप हो जाएगा, उसमें वो हेल्प कर रहा है, राइट। So in our second part, we will discuss about menstruation, phases of menstruation, anatomical structure of uterine tubes and ovaries. So thank you for watching my videos. वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, so that you can get further notification related to the topic of BSc nursing subjects. Thank you.